Hello, good morning, students. You all welcome in Asian College of Science and Commerce, and today we are going to see the content of. Hello, good morning, students. You all welcome in Asian College of Science and Commerce, and today we are going to see entrepreneurship development. What is mean by entrepreneur? In today's lecture, we are going to see what is mean by entrepreneur, what is mean by manager, and what is mean by entrepreneur. Okay, so see what is mean by entrepreneur. The definition of the terms of entrepreneur is there are a number of definitions are given here. I'll teach you only the two definition from this given definition. Here is given a six definition. I'll explain you all the six definition, but you should learn or keep in the mind only two definition at least. Okay, so first definition is Richard Cantillon. Okay, Richard Cantillon, he says that an entrepreneur is a person who pay a certain price of product to resell it at an uncertain price. म्हणजे एंटरप्रिनियर कोण असतो? हा असा पर्सन आहे जो पे करतो सर्टन प्राईस फॉर द प्रोडक्ट टू रिसेल. त्याच्या जवळचं जे काही प्रोडक्ट आहे ते रिसेल करण्यासाठी जो पैसे पे करतो दॅट इज द एंटरप्रिनियर ॲट ॲन अनसर्टन प्राईस, thereby making a decision about obtaining and using the resources while consulting admitting the risk of entrepreneur. कुठल्याही प्रकारची रिस्क घेण्यापूर्वी तो पूर्णपणे विचार करत असतो. ओके, नेक्स्ट आहे वेबस्टर. ही छोटीशी डेफिनेशन आहे. ही डेफिनेशन तुम्ही रट्टा मारून ठेवू शकता. तर बघा, एंटरप्रिनियर इज वन हू इज ॲज्युम द रिस्क अँड मॅनेजमेंट ऑफ बिझनेस. एंटरप्रिनियर इज वन ऑफ द पर्सन दॅट हू कॅन ॲज्युम द रिस्क. एंटरप्रिनियर काय करत असतो? रिस्क घेत असतो. ही इज रेडी टू टेक अ रिस्क. ही इज रेडी टू फेस द फ्युचर रिस्क इन हिज ओन बिझनेस. ओके, अँड मॅनेजमेंट ऑफ बिझनेस. JB says an entrepreneur is an economic agent who entities all means of thus produced a product by selling the product in a market. He pays rent of land, wages to the labor, interest on capital, and what remains is this profit. He shifts the economic resource out of an area of lower into an area of higher productivity and greater yield. Okay, Schumpeter. Entrepreneurs are innovators who use a process of shattering the status quo of existing product and services to set up a new product and new services. Okay, entrepreneur is a person who set up new product, new business, new strategies, new methodologies, okay, for his own business. That is called entrepreneur. David McClelland. He says that an entrepreneur is a person with high need of achievement. He is energetic and moderate risk taker. He is a moderate risk taker. Peter Drucker, one of the great author, Peter Drucker says that an entrepreneur searches for change, responds to it, and exhibits the opportunities. Innovation is a specific tool of an entrepreneur. Innovation is one of the specific tools for the entrepreneur. Hence, an effective entrepreneur converts
a source into a resources. Hence, an effective entrepreneur. Effective entrepreneur converts a source into resources. A true entrepreneur is thus one who combines into factors in such manner that will generate a greater output. तुम्हाला जास्तीत जास्त आउटपुट त्यातून मिळत असतो. This greater output from various input factors will result in creating wealth of the society. ओके, त्यामुळे सोसायटीची वेल्थ ही चेंज होत जाते. ओके, the next one is given here. In the end of it is decided that the concept of managerचे काय कन्सेप्ट आहे. ओके, the entrepreneurs involved while the manager administration. मॅनेजर काय असतो, इन्वॉल्ड असतो एंटरप्रिनरशिप प्रोग्राममध्ये. द एंटरप्रिनियर सी द अपॉर्च्युनिटी. एंटरप्रिनियर काय करत असतो, अपॉर्च्युनिटी बघत असतो. द मॅनेजर सीज द predicament. The entrepreneur develops something based on an absorbed opportunity and the managers run on organization. A manager is one who deals with the everyday efforts and operates an activities venture. Manager must use the entrepreneurial talent in order to manage and invent new things. Okay. Now see the concept of entrepreneur. What is mean by here we see what is manager. Now we see entrepreneur. Okay, what is mean by entrepreneur? The term entrepreneur was term in America during the 17th centuries. There was the entrepreneur term was derived. Okay, many senior executives of huge companies in America left their job to start their own venture because their employers in these corporations were not open a new idea. ओके, कधी ही टर्म चालू झाली आहे 17व्या शतकामध्ये अमेरिकेमध्ये. एंटरप्रिनियर ही टर्म चालू झाली, एंट्राप्रिनियर. आणि ती कशामुळे चालू झाली की त्यावेळची एक कंडिशन अशी होती की ज्या वेळेला सगळ्या लोकांचे जॉब काय लेफ्ट देअर जॉब टू स्टार्ट देअर ओन व्हेंचर्स. प्रत्येकाने आपले स्वतःचे ओन व्हेंचर चालू केले बिकॉज देअर एम्प्लॉयमेंट इन दीज कॉर्पोरेशन्स वेअर नॉट ओपन अ न्यू आयडिया. कारण त्याच्यामध्ये नवीन काही आयडियाज ओपन होत नव्हत्या. न्यू ॲडव्हेंचर्स, सम ऑफ देम वेअर इन फोर्स combinations to the corporations they left a few years ago. These kind of entrepreneurs come to be known as entrepreneurs. Okay, such business brain drain is a global phenomena and it's not only confident to the United States मध्ये ही चालू झालं. Manufacturers thought the world started during the way of stopping their brilliant executives from leaving their companies. An American management experts, Clifford Pint III wrote his famous book Entrepreneuring in 1985 and use them entrepreneurs to be explain the people who left there will be paid executive position to start their own entrepreneur. Okay, that is entrepreneur. There is given a lengthy process, but you should be understood the concept of entrepreneur in these few words. Okay, so this is the difference between entrepreneur, managers and entrepreneur. Okay, so I think all you got about entrepreneur and entrepreneur. Next we will going to see the difference between entrepreneur and managers in the pointing method. Okay, so see, number 1, primary motives. What will be the primary motives for the entrepreneur and entrepreneur? The entrepreneur is desired freedom, goals oriented, independent and self motivated. एंटरप्रिनियर कसा असला पाहिजे, तो डिझायर्ड असला पाहिजे, त्याच्या डोक्यामध्ये नवीन नवीन कल्पना असल्या पाहिजे, तो फ्रीडम त्याला मिळालं पाहिजे.
गोल ओरिएंटेड, त्याचे स्वतःचे गोल्स असतात. इंडिपेंडन्स असतो तो कोणावरही डिपेंड नसतो आणि सेल्फ मोटिवेटेड असतो, जो स्वतःला मोटिवेट करत असतो. एंट्राप्रिनियर कोण असतो? डिझायर्ड फ्रीडम, त्याला पण फ्रीडम लागतंच. एंट्री टू कॉर्पोरेट रिसोर्स, तो कॉर्पोरेट रिसोर्स थ्रू याच्यामध्ये एंटर होतो. गोल ओरिएंटेड असतो, सेल्फ मोटिवेटेडसुद्धा असतो, बट ऑल्सो रिॲक्ट टू द कॉर्पोरेट रिवॉर्ड्स अँड क्रेडिट्स, पण तो अपेक्षा करत असतो कॉर्पोरेट्स रिवॉर्ड्स आणि कॉर्पोरेटकडून मिळणाऱ्या क्रेडिट्सची. आणि मॅनेजर कोण असतो? मॅनेजर डिझायर्ड प्रमोशन, मॅनेजरला नेहमी प्रमोशन डिझायर्ड असतं. अदर ट्रॅडिशनल कॉर्पोरेट रिवॉर्ड्स, पॉवर्स अँड मोटिवेटेड. ओके, नेक्स्ट आहे टाईम ओरिएंटेशन. तर यांचे टाईम ओरिएंटेशन्स काय आहे ते आता इथे आपल्याला बघायचे. एंटरप्रिनियरचं टाईम ओरिएंटेशन काय आहे? युजेस अँड इन्स्पायर्स of 5 to 10 years expansions of the business as guide, takes action about how to take the next steps along the way. आणि एंटरप्रिनियर काय असतो? एंड goal of 3 to 15 years depending on the types of enterprise pressure to meet the self-inflict and corporate timetables. Okay, manager is replied to quotes and budgets to weekly, monthly, quarterly and yearly planning, horizon and to next promotions or transfer. Next is टेंडन्सी टू ॲक्शन कशी घेतली गेली पाहिजे किंवा ॲक्शन घेण्याबाबतीत काय टेंडन्सी युटिलाइज केली गेली पाहिजे. सो सी, एंटरप्रिनियर अँड एंट्राप्रिनियर अँड मॅनेजर्स, द टेंडन्सी शुड बी टेकन ॲक्शन बाय द गेट्स हँड dirty, may distressed employee by doing their work all of a sudden. ओके, आणि एंटरप्रिनियरला काय असतं? गेट हँड डर्टी, त्याचे हात दे हँड डर्टी, माइट अंडरस्टँड हाऊ टू डिलाइट बट वेन रिक्वायर्ड डज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन. मॅनेजर डेलिगेट्स ॲक्शन, मेंटरिंग अँड रिपोर्टिंग टास्क अ लॉट ऑफ एनर्जी. स्किलमध्ये काय येतं? अंडरस्टँडेबल बिझनेस व्हेरी वेल. स्किल कसा असला पाहिजे? अंडरस्टँडेबल असला पाहिजे. एंटरप्रिनियरच्या दृष्टीने त्याचा बिझनेस स्किल्स कसा असला पाहिजे? अंडरस्टँडेबल असल्या पाहिजे. मोर बिझनेस इनसाईड दॅन द मॅनेजरियल अँड पॉलिटिकल स्किल. ओके, त्याच्या डोळ्यासमोर त्याचा बिझनेस हा मॅनेजरियल स्किल्सपेक्षा आणि पॉलिटिकल स्किल्सपेक्षाही पुढे असला पाहिजे. युजली टेक्निकली टायर्ड इफ इन टेक्निकल बिझनेस. ओके, may have to had a profit and loss responsibility in the company. नेक्स्ट आहे प्रोफेशनल मॅनेजमेंट युजली ट्रेंड इन द बिझनेस स्कूल, यूज ॲबस्ट्रॅक्ट ॲनालिटिकल इक्विपमेंट्स, पीपल मॅनेजमेंट अँड पॉलिटिकल स्किल. मॅनेजर्ससाठी काय असतं? प्रोफेशनल मॅनेजमेंट युजली ट्रेंड इन अ बिझनेस स्कूल, यूज ॲबस्ट्रॅक्ट ॲनालिटिकल टूल, पीपल मॅनेजमेंट अँड पॉलिटिकल स्किल. Attitude toward the courage and destiny, self-confident and positive, self-confidence, positive and courageous. Okay, sees other being in change of his or her density, can be forceful and determinants, but may be fearful of other capacity to do him or her. Self-confidence and courageous, many are skeptical about the system and positive about their ability to outwin. Focus of attend mainly on technology and marketplace, both inside and outside sales. Inside on requirement for venture and marketplace, but also ventures on its customs. Mainly one event inside the corporation. Attitude toward the risk.
Like responsible risk, invest a lot but expect to be successful. Entrepreneur का है like responsible risk usually not affairs for being a seed little responsible risk. Text presentation, use of market research, creates product that cannot be tested with the market research. Potential customers do not yet understand them. uh, Speak to customers and creates its own option. Entrepreneur does own market research and initiatives market assume like the entrepreneur has market students completed to explore need and guide product conceptualization. uh, After that I'll going to attach here some another videos that the help that will be helpful for you the clear the concept of entrepreneur, manager and entrepreneur. Okay, so enjoy with these videos. है बोल रहे हैं आजकल आप हो जाओ और संपूर्ण ज्ञान दूंगा, ये कैसा माइंडसेट है? मोदी जी बोल रहे हैं आजकल आप हो जाओ आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट, लेकिन एम्प्लॉय अगर बन जाए इंट्राप्रेन्योर वो जाता है आत्म प्रेरित। आत्मनिर्भर तो ये है, वो आत्म प्रेरित है, सेल्फ मोटिवेटेड, ये वो एम्प्लॉय है जो लेता तो तनख्वाह है पर माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर के जैसा होता है। जब आपके लिए काम करता है, आपका खुद का विजन है, सेल्फ विजन, उसका होता है शेयर्ड विजन। अगर आपने इंट्राप्रेन्योर खड़े कर दिए, वो एम्प्लॉय जो आपकी तरह सोचते हो, एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हो, तो लेंगे तो तनख्वाह पर काम करेंगे कैसे? आग पीछे नहीं लगाते, सीने में लगाते हैं। एक क्लाइमेट बन जाता है कंपनी के अंदर रेडिकल और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट और इनोवेशन का। वो अपने आप नए इनिशिएटिव लेगा, अपने आप नए आइडियाज लेके आएगा। आपने उसकी जिंदगी में पंख लगा दिए हैं। क्या होता है ये एंटरप्रेन्योर? एम्प्लॉय से बड़ा फर्क है। एम्प्लॉय तो स्लो स्पीड पे काम करता है, ये हाई स्पीड पे करता है। एम्प्लॉय प्रॉब्लम पे फोकस करता है, ये एक्शन पे फोकस करता है। एम्प्लॉय कहता है परिवार ही मेरा परिवार है, ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन भी मेरा परिवार है। एम्प्लॉय नए इनिशिएटिव नहीं लेता, ये ओनरशिप लेता है और एक्सपेरिमेंटल इनिशिएटिव करता रहता है। एम्प्लॉय की आदत क्या बोलता है? मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं, मेरा तो बस यही काम है। और इंट्राप्रेन्योर बोलता है आई ओन दिस कंपनी। वो कहता है खाली ये काम नहीं, पूरी कंपनी मेरी है। इसीलिए एम्प्लॉय कंज्यूमर रह जाता है, ये कंट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर बन जाता है। इस चक्कर पता है क्या? एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग हमेशा रिएक्टिव और पुश स्टार्ट होते हैं, ये प्रोएक्टिव और सेल्फ स्टार्ट होता है। एम्प्लॉय अवेलेबल होगा टाइम टू टाइम, वो टाइम बेस्ड काम करता है। ये अवेलेबल होगा एवरी टाइम, ऑल द टाइम, ये टास्क बेस्ड काम करता है। इंट्राप्रेन्योर का माइंडसेट चेंज हो गया ना, अब उसको ये नहीं है 9 से 6 की जॉब करेगा, वो हर समय करने को तैयार है। क्यों? वो कहता है भाई काम खत्म करना है, टाइम नहीं खत्म करना है। काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। एम्प्लॉय है ना, ही गेट्स पेड फॉर द टाइम ही स्पेंड्स। इंट्राप्रेन्योर ही गेट्स पेड फॉर द वैल्यू ही क्रिएट्स। वो कितना आउटकम क्रिएट करता है। ये एम्प्लॉय सोचता है मेरी अर्न लीव कितनी, मेरी कैजुअल लीव कितनी, मेरी सिक लीव कितनी, और वो क्या कहता है? आई डोंट वांट टू लीव एंड आई डोंट वांट एनी लीव। हमेशा ना एम्प्लॉय फिक्स्ड पे की बात करता है और ये वेरिएबल पे की बात करता है। मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं तो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? एम्प्लॉय सोचता है मुझको प्रमोशन मिल जाए कंपनी में, प्रमोशन इन कंपनी। ये सोचता है प्रमोशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का प्रमोशन हो जाए। एम्प्लॉय हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचते हैं और ये सपनों को प्लान कर जाते हैं। एम्प्लॉय थोड़ा हार्ड वर्क करता है, ये स्मार्ट वर्क करता है। एम्प्लॉय दूसरों को ब्लेम करेगा, ये खुद को ठीक करेगा। एम्प्लॉय का ब्रेक डाउन हो जाता है फेलियर में, इसका ब्रेक थ्रू हो जाता है फेलियर में। आपको जानना चाहते हो कि ये करे कैसे? अरे ऐसे एम्प्लॉय कैसे मिलते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती हैं? 8 तरीके बताऊंगा। पहला क्या है? क्रिएट क्रॉस फंक्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग वॉर रूम्स, यानी कि अपनी टीम्स बनाओ अलग अलग डिपार्टमेंट की, एचआर को भी, फाइनेंस को भी, मार्केटिंग को भी, सेल्स को भी, ऑपरेशंस को भी। लोगों को जोड़ो, उनको एक प्रॉब्लम दो, बोलो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। उनको एक गोल दो, बोलो ये अचीव करके दिखाओ। इससे वो सोचना शुरू करेंगे, एक कल्चर आना शुरू होगा। और उसमें क्या करो आप? एनकरेज ट्रायल एंड एरर। उनको बोलो छोटे छोटे अटेम्प्ट करो, छोटी छोटी गलतियां करो, कर दो, कोई बात नहीं।
होने दो, छोटी गलती होने दो, लेकिन वो फिर गलती से सीखेगा। फेलियर को अलाउ करो। अगला पॉइंट क्या है? ईसॉप और रिवॉर्ड और ग्रोथ पाथ। ये ग्रोथ पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईसॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। हमारा जो 2 साल का कोर्स है वहां हमने ईसॉप डिटेल में समझाया है कि आप एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन यानी कि अपने शेयर होल्डर कैसे बना सकते हो। उसको 1% का, आधा परसेंट का, 2% का, 4% का शेयर होल्डर बना दो। तनख्वाह के साथ जब उसको शेयर मिलते हैं उसको लगता है कंपनी ग्रो कर रही है, मैं भी ग्रो कर रहा हूं, क्योंकि वो ओनर बन जाता है। उसका ग्रोथ पाथ बनाओ। वो कैसे बनेगा? मैनेजर से, जनरल मैनेजर से, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या चीफ सेल्स ऑफिसर या चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर या चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। उसको ग्रोथ पाथ दो, उसको एक पिता की तरह सपोर्ट करो, और पर्सनल मेंटरिंग अराउंड गोल ओरिएंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल्स क्रिएट करो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स क्रिएट करके क्लैरिटी देके मेंटरिंग 1-to-1, मतलब 1-to-1 अकेले में पीठ थपथपा करके, अगर आप दो डायरेक्शन, वो लेगा डिसीजन। मेरी बात सुनो, आपका काम है डायरेक्शन, उसका काम है डिसीजन। एकदम कल्चर बदलने लग जाएगा। एक और तरीका कल्चर बदलने के लिए कि थोड़ा कस्टमर के नजदीक जाओ, गेट क्लोजर टू द कस्टमर। कस्टमर सेंट्रिसिटी, क्योंकि कस्टमर आपको बताएगा उसको क्या चाहिए। कस्टमर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कहीं करेक्शन देगा, कहीं सजेशन देगा, कहीं इंप्रूवमेंट देगा, और उससे आपको आइडिया जब आपके एम्प्लॉइज को, एंटरप्रेन्योर को मिलेंगे तो वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया। अगला पॉइंट, एवरी परफॉर्मेंस शुड बी रिवॉर्डेड इमीडिएटली। कुछ भी अच्छा करे कोई, उसको कर दो, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, वही तो व्यवहार दोहराएगा बार बार। एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। चक्कर पता है क्या है? कई एम्प्लॉय कैसे होते हैं, काम करो तब भी उतनी तनख्वाह, नहीं करो तब भी उतनी तनख्वाह, तो फिर क्यों करे? सरकारी मेंटालिटी हो जाती है ना। इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक फॉर्मूला। आपको मालूम है हमारे देश के आईएएस ऑफिसर्स ने कभी बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन नहीं किए। बड़े कम आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बड़े रेवोल्यूशंस लेके आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ बहुत एक्स्ट्रा करते हैं तो बड़ा इंसेंटिव मिलता नहीं है, और वो कुछ गलती कर बैठते हैं तो उनको पिटाई बहुत हो जाती है। कभी सीएजी, सीवीसी, सीबीआई, वो सब रेड मारने आ जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या है, उनको ना कैरेट एंड स्टिक फॉर्मूला नहीं है। स्टिक तो है, अगर आईएएस ऑफिसर गलती करे तो उसकी पिटाई होती है, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा करे तो उसको कोई बड़ा इंसेंटिव, रेवेन्यू, रिवॉर्ड उतने बड़े मिलते नहीं हैं। आप कर सकते हो ये। आप क्या कर सकते हो? शेयर फाइनेंशियल सक्सेस विद एम्प्लॉइज। कुछ भी अगर आपको बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है, शेयर करो, इंसेंटिवाइज करो किसी इफेक्टिव आइडिया को। अगर आपका एम्प्लॉय कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा दे, या आपका रेवेन्यू बढ़ा दे, आपकी कॉस्ट घटा दे, 3 बातें बोली है मैंने। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, आपका रेवेन्यू या आपकी कॉस्ट। रेवेन्यू बढ़ाए, कॉस्ट घटाए, सेटिस्फैक्शन बढ़ाए, इनमें से कुछ भी कर दे तो उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दो। देखो फाइनेंशियल रिवॉर्ड में ना नुकसान नहीं है, क्योंकि कॉस्ट मूव्स विद प्रॉफिट। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो कॉस्ट आएगी आपके, जब वो पैसा लेके आएगा तभी तो देना पड़ेगा आपको। आप प्रोडक्टिविटी गेन को शेयर कर सकते हो। भाई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव हो जाएगा तो तुझे दे दूंगा मैं। हाँ, इससे हायर प्रोडक्टिविटी अपने आप आएगी, वर्कर की लॉयल्टी अपने आप आती है। इंसेंटिव के कई तरीके हमने अपने 2 साल के कोर्स में बहुत तरीके डिटेल में दी है। यहाँ थोड़ा मोटिवेशनल और शॉर्ट वीडियो होते हैं, वहां डिटेल में जाते हैं। जैसे आप बोनस दे सकते हो। बोनस क्या है? टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। आपने अलाउ किया 8 घंटा, उसने काम कर दिया 4 घंटे में, यानी कि 50% ज्यादा जल्दी काम कर दिया, आप उसको बोनस दे सकते हो। मेरिट बेस्ड होते हैं, कमीशन बेस्ड होते हैं, आउटपुट बेस्ड होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग बेस्ड होते हैं, को पार्टनरशिप बेस्ड होते हैं, गेन शेयरिंग बेस्ड होते हैं, ईसॉप बेस्ड होते हैं। आप बहुत तरह होते हैं इंसेंटिव। आप क्या कर सकते हो? उसको और बेनिफिट दे सकते हो, करियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे सकते हो। पैसा नहीं देना तो उसको रिकॉग्निशन दो, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दे करके, या उसको कोई गिफ्ट का कार्ड दे दो, उसको कोई फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस के कूपन दे दो, उसको कोई प्रेफर्ड पार्किंग भी आजकल जबरदस्त चीज हो गई भैया। पार्किंग कम है, आपने एम्प्लॉय की पार्किंग का स्लॉट बना दिया, वो आता है बड़े एकदम समझो चौधरी जी, आज हम अपनी गाड़ी लगाएंगे, ये हमारी गाड़ी की जगह है। सब गाड़ी बेचारे पार्किंग ढूंढ रहे हैं और वो आराम से, क्योंकि ना उसको एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, ये मेरी रिजर्व्ड पार्किंग है, इतना इंपॉर्टेंट हूं मैं। आप उसको कुछ टेक गैजेट्स भी दे सकते हो, उसको कोई ट्रैवल वाउचर, कोई वीकेंड गेट अवे कि भाई बाजू में चला जाए घूमने के लिए, थोड़ा कोरोना घटने दो, बाकी ये सब चीजें काम आ जाएंगी आपको। उसको कोई प्रेसिडेंट क्लब दे सकते हो भाई, इसके अलावा से क्लब मेंबरशिप दे सकते हो बाजू में, कोई लंच विद एग्जीक्यूटिव कर सकते हो, उसको कोई जिम मेंबरशिप दे सकते हो। कितने याद है मेरे को ना, इतने सारे जल्दी जल्दी बोलता हूँ। एंटरटेनमेंट की टिकट देख सकते हो। 4 बातें याद रखना, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं। फर्स्टली, एनेबल देम to become opportunity scanner and producer and then become their advocates in making them PNL और BU head। क्या मतलब हुआ? आप उनको enable करो, उनको बोलो नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाए, अपॉर्चुनिटी स्कैनर, ताकि वो प्रोड्यूस करें अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके, और आप उनके एडवोकेट बन जाओ, उनको PNL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का हेड बना दो। भाई तेरा ये डिपार्टमेंट है, ये तेरे 25 सेल्स के लोग हैं, तू उनको हेड कर रहा है, जितना इनका खर्चा है और जितनी ये कमा के देंगे, वो जब कमा के देंगे जितना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में 5% तेरा भी शेयर है। आपने उसको पीएनएल हेड बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का हेड।
आपने उसको BU हेड बना दिया, बिजनेस यूनिट हेड। गूगल ने ऐसे ही तो किया है, आज तक गूगल ने यही किया है। इतना कहते गलती करो, नई नई गलती करो, रोज नई गलती करो, पुरानी गलती मत दोहरा देना बस। गूगल ने सारे ऐसे फ्रॉड बनाए, उनका जीमेल भी ऐसे बना, उनका ड्राइवरलेस कार भी ऐसे बना, उनका गूगल मैप्स भी, एंड्रॉइड भी, ये सब इंट्राप्रेन्योरियल मॉडल से बने हैं। मैं आपको बेस्ट अमेरिकन और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के मॉडल ला करके देता हूं। हमने अपने 2 साल के कोर्स में भी आपको HR संबंधित, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी संबंधित बहुत चीजें दी हैं कि एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करें, उसका सक्सेशन प्लानिंग, लीडरशिप इन पाइपलाइन कैसे लाएं, हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे क्रिएट करें, नया आदमी रिक्रूट करके कैसे लाएं, जो बढ़िया आदमी उसको रोक के कैसे रखे, रिटेंशन या उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे लेके आए, कॉम्पेंसेशन कैसे बनाया जाता है, सैलरी स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता ही नहीं सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, बैंड कैसे तैयार किए जाते हैं कि भाई कौन जनरल मैनेजर, कौन मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होगी, उनकी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या है, क्या फॉर्म्स देने, उनको रिवॉर्ड कैसे दिए जाएंगे, शेयर कैसे कंपनी के दिए जाते हैं, EAPA के जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिव्यू कैसे किए जाएंगे, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस क्या होता है, उनके KRA KPI कैसे बनाते हैं, सेल्फ कोचिंग डायरी कैसे बने, खुद कोई कोच कर ले, अपने आप ही कर लेगा कोच, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, आत्मनिर्भर, आत्म प्रेरित दोनों ही चाहिए आपको। स्कोर बोर्ड बना दो उनके, एम्प्लॉय को इंट्राप्रेन्योर कैसे बनाए, अमेजिंग टॉपिक्स है, छोड़ेंगे नहीं। भारत के व्यापारियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल कंटेंट और दुनिया के सबसे अफोर्डेबल रेट्स पे आपको दे रहे हैं। लाइक करके उत्साह बढ़ाइए अगर बिजनेस कंटेंट भी आपको पसंद आता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के वीडियो सब छूट जाएंगे, उनको जरूर शेयर करो। जो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बेसिकली थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंटरप्रेन्योर, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड से आया है जो था एंट्रेप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। अब देखो ये वाली चीजें तो सारी किताबों मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, बट जो मेरा फोकस होता है वो होता है कि मैं मीनिंग वगैरह समझा सकूं, अंडरस्टैंड करा सकूं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप तो एक प्रोसेस थी जो हमने जिसके बारे में पढ़ा, जिसमें बेसिकली हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के लिए हम रिसोर्सेज वगैरह को गैदर करते हैं एंड फर्दर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो बंदा ये सारा काम करता है वो मेरा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अब इसका एग्जांपल लेंगे तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था। डिमोनेटाइजेशन में क्या था कि लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था जस्ट टू गेट देयर करेंसीज एक्सचेंज। तो एक कंपनी या कुछ इंडिविजुअल्स ने स्टार्ट किया था कि वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे या लोगों को प्रोवाइड करते थे जो उनकी जगह लाइन में खड़ा हो सके। एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आया, उसने अपॉर्चुनिटी देखी लोगों का टाइम बचाकर पैसे कमाने की, एंड जिस बंदा वो आइडिया लेके आया, जिसने उसको एग्जीक्यूट किया, वो मेरा एंटरप्रेन्योर कहलाया। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का अब हमने मीनिंग समझ लिया। अब एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आइए लोग कोई डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है एंटरप्रेन्योर्स आर दोज पीपल हु हैव द एबिलिटी टू सी एंड इवैल्यूएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टुगेदर विद द नेसेसरी रिसोर्सेज टू टेक एडवांटेज ऑफ देम एंड टू इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर सक्सेस। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, वो इंडिविजुअल्स जो कि कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को कैरी करते हैं, यानी कि नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, देन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके एग्जीक्यूट करते हैं ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सके, यानी कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सके, वो मेरे एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। क्योंकि ये एक जनरल सब्जेक्ट है, अब हम एक तो जनरल चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। एंटरप्रेन्योर काफ़ी ज़्यादा फैंसी वर्ड लगता है आजकल, बट रियलिटी में एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी सारे रिस्क वगैरह भी है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझने के लिए मोस्टली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ऑलवेज रीड अबाउट द सक्सेस स्टोरीज, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि लाइक अगर अच्छी टीचिंग्स लेनी है तो फेलियर स्टोरीज देखो। इसमें टाइनी आउल की देखी जा सकती है। टाइनी आउल एक ऐसी कंपनी थी जिसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग की मिल गई थी, जबकि उसका जो रेवेन्यू था वो शायद 23 और 24,000 रुपीज़ ही था, बट स्टिल ने उसने उठा ली थी एंड अल्टीमेटली वो कंपनी फेल हो गई थी आगे जाकर, एंड उससे काफ़ी अच्छी टीचिंग्स मिली। तो उनके बारे में भी पढ़ोगे तो और अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझ आएगा,
क्योंकि ये डेफिनेशंस वगैरह कोई मायने नहीं रखती, ये एग्ज़ाम में तो पास करवा देती है, बट अनटिल एंड अनलेस उसका मीनिंग उसके बारे में ना पता लगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। एंटरप्रेन्योर का समझने के बाद एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर्स में कि एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। तो अगर आ जाए तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अपने वर्ड्स में लिख लेना, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बेसिक डिफरेंस समझना हो तो एक लाइन में समझा जा सकता है। एंटरप्रेन्योर मेरा एक इंडिविजुअल है एंड जो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है वो उस इंडिविजुअल की एक्टिविटी है, या ये मेरा पर्सन है और ये मेरे इस पर्सन की एक्टिविटी है। तो अगर एग्जाम में डिफरेंस आ जाए तो सबसे मेन डिफरेंस यही है। उसके अलावा लिखा जा सकता है एंटरप्रेन्योर मेरा ऑर्गेनाइजर है जो रिसोर्सेज वगैरह को ऑर्गेनाइज करता है, और जबकि एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी प्रोसेस है। ये मेरा पर्सन है, ये मेरी प्रोसेस है, ये मेरा मोटिवेटर है, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ करके देखो, जैसे कि मैंने पीछे एक वेब सीरीज का नाम लिया था TVF पिक्चर्स का, जिसमें एक जगह वो स्पीच देता है जिसमें वो बेसिकली बताता है कि एंटरप्रेन्योरशिप है कि उसमें क्या स्किल्स है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह की मोटिवेशन देती है हम लोगों को कोई भी टास्क करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, तो मैं इसे मोटिवेशन बोल सकता हूँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें बस इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योर मेरा इंडिविजुअल है जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली सारी एक्टिविटीज़ करता है, या जो सारी एक्टिविटीज़ एंटरप्रेन्योर कर रहा है वो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कवर करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, डिज़ायर फॉर हायर अचीवमेंट। मेरे एंटरप्रेन्योर की कभी भूख खत्म नहीं होती। जैसे कि अगर वो आज सपोज करो 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, उसका हमेशा मोटिवेशन रहेगा कि मैं 10 को 15 कैसे करूँ, 20 कैसे करूँ या 100 कैसे करूँ। हमेशा अपने गोल्स को आगे बढ़ाना, अपनी अचीवमेंट को और बड़ा बनाना, ये वाला मेरे एंटरप्रेन्योर का फीचर रहेगा ही रहेगा। सेकेंड, ऑप्टिमिस्टिक। एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी रिस्क वाला काम है एंड अनटिल एंड अनलेस इंडिविजुअल ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसके अलावा लिखना हो तो इसमें आ जाएगा इनोवेटिव होना चाहिए, मोटिवेटिव, हायर प्रोडक्टिविटी, फोरसाइट, विजन, क्लियर गोल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। तो ये सारे मेरे फीचर्स आ जाते हैं। सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट अगर इनकेस आपको किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बाद में पूछ सकते हो, सारे इजी हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले पे जो कि है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का कोई भी यूनिवर्सल टाइप्स वगैरह फॉलो नहीं करे जाते। हर किसी ने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसके टाइप्स बना दिए। मैंने काफ़ी जगह रेफ़र किया, ट्राई किया कि मैं सबको कवर कर लूँ। तो टाइप्स का अगर आ जाए 15 मार्क्स का भी, तो जितना मैं एक्सप्लेन करूँगा अगर उसका फ्लो चार्ट एंड उसके बारे में एक एक लाइन भी लिख दोगे तो मोर देन इनफ है। जो मैंने यहाँ पे टाइप्स बताए हैं, मैंने क्लासिफिकेशन 6 बेसिस पे करी है, तो हम 6 के बारे में पढ़ेंगे एंड जल्दी जल्दी करके चलेंगे। सबसे पहले मैं लिख लूँ किन किन बेसिस पे मैंने किया है। सबसे पहला टाइप ऑफ बिजनेस, उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ बिजनेस की। टाइप ऑफ बिजनेस जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि मेरा एंटरप्रेन्योर किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ। इसमें फर्दर 5 टाइप्स आए, जिसमें आया सबसे पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स को मैं हर जगह अब ENT लिख रहा हूँ। बिजनेस एंटरप्रेन्योर के अलावा ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर के बाद इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के बाद कॉर्पोरेट, और लास्ट में आता है एग्रीकल्चर। एक एक करके फटाफट एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस। बिजनेस एंटरप्रेन्योर मेरे वो एंटरप्रेन्योर्स है जो बेसिकली कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं एंड उस प्रोडक्ट के बेसिस पे नया बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं, या फिर कोई भी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना लिया। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का मेरे को लगा आगे काफ़ी अच्छा बूम आने वाला है, तो मैंने एक गारमेंट फैक्ट्री अपनी बना ली, गारमेंट का बिजनेस खोल लिया एंड ऑनलाइन बेचना चालू कर दिया।
तो मेरा बिजनेस एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, यानी कि इसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। मैंने सामान लिया, आगे उठा के बेच दिया, ट्रेडिंग करी। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में मैं सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूँ कि मैंने मार्केट में पोटेंशियल देखा एंड उस इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाला सारा काम किया। टेक्सटाइल यूनिट्स, मशीन टूल्स, वीडियो कैसेट्स एक्सेट्रा इसका एग्जांपल है। फिर आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मेरे बिजनेस का एक बड़ा भाई है। कॉर्पोरेट यानी कि मैं एमएनसीज वगैरह की जो बात करता हूँ, एंटरप्राइज सेट करके काम लेना, वो मेरा कॉर्पोरेट में आ जाएगा। एंड लास्ट में आता है एग्रीकल्चर। जो भी मेरी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ है जो कि मेरे एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, लैंड, क्रॉप्स, फील्ड, इन सब से, वो सारे मेरे इसके पार्ट है। तो ये था टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस के बाद आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी 3 तरह के आते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक एंड प्रोफेशनल। सबसे पहले टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल में मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इन एंटरप्रेन्योर्स का क्या है कि मैं ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन करूँ रादर देन मार्केटिंग। मैं अपनी प्रोडक्शन टेक्निक्स को इम्प्रूव करूँ, मैं अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी अच्छे से करूँ, कॉस्टिंग कम से कम लाऊँ, उसके अलावा नए नए प्रोडक्ट्स बना पाऊँ, वो मेरा टेक्निकल में आ जाते हैं। जितने भी मेरे टेक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि अमेजोन वगैरह, वो सारे मेरे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स के। नॉन टेक्निकल में क्या होता है, ये मेरे टेक प्रोस्पेक्ट को छोड़कर मार्केटिंग वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं मार्केटिंग के नए नए वेज वगैरह ढूंढ पाऊँ अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तीसरे आते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वाले मेरे और 2 कदम आ गए। इनको मेरे ना टेक्निकल से मतलब ना मार्केटिंग से, इन्होंने जस्ट यूनिट एस्टैब्लिश करी, बेची, आगे मूव ऑन कर गए। थर्ड आते हैं मोटिवेशन वाले। मोटिवेशन में मेरे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन वाला कई बार आया हुआ है, प्योर एंटरप्रेन्योर्स, इंड्यूस्ड, मोटिवेटेड, स्पॉन्टेनियस। प्योर एंटरप्रेन्योर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये वो इंडिविजुअल है जो अपने साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिवॉर्ड से मोटिवेट होते हैं। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी सिर्फ अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के मारे कर रहे हैं, स्टेटस के मारे कर रहे हैं। जैसे कि बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया था एंटरप्रेन्योर होना, तो एक तरीके से मेरे प्योर वाले थे। उसके बाद आते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में क्या है, इनमें मेरा मोटिवेशन मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का पहले नहीं था, बट ड्यू टू सर्टेन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, इंसेंटिव्स या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये एंटरप्रेन्योरशिप टास्क ले लेते हैं एंड करना चालू कर देते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं गुड़गांव का। गुड़गांव आज से 20 साल पहले एकदम खत्म, कुछ भी नहीं था, लैंड वगैरह थे, फॉरेस्ट वगैरह थे, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, बट लास्ट 20-25 ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ के जो काफ़ी सारे लोकल पीपल थे, वो उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड उन्होंने काफ़ी सारा एंटरप्रेन्योर वर्क किया। उसके बाद आते हैं मोटिवेटेड। मोटिवेटेड क्या है, मैंने अपने कस्टमर्स को कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़े से एंटरप्रेन्योरल स्किल्स दिखाए, कुछ इनोवेशन किया एंड वो जो मेरा इनोवेशन था वो सक्सेसफुल रहा एंड मेरे कस्टमर्स को अच्छा लगा, तो ये तरीके हो गए। लास्ट होते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मेरे बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनमें सारे एंटरप्रेन्योरल स्किल्स वगैरह होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोगों के आते हैं ग्रोथ के बेसिस पे। ग्रोथ पे 2 हैं, एक है मेरे ग्रोथ एंटरप्रेन्योर, एक है सुपर ग्रोथ। ग्रोथ और सुपर ग्रोथ में क्या फ़र्क है, ग्रोथ वाले वो होते हैं, वो पहले ही ऐसी इंडस्ट्री चूज करेंगे जिसमें हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, चांसेस है। जबकि सुपर ग्रोथ वाले क्या होते हैं, जिन्होंने अपने वेंचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ शो करी है। दोनों का एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं ग्रोथ की बात करता हूँ। ग्रोथ में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फैशन इंडस्ट्री का। फैशन इंडस्ट्री का ले लेंगे जिसमें बहुत सारी आज भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या फिर और भी अच्छा कॉमन एग्जांपल लूँ तो मैं डिजिटल पेमेंट्स का ले सकता हूँ, आज भी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। जबकि मैं सुपर ग्रोथ की बात करूँगा तो इसमें मैं नाम ले सकता हूँ विजय शेखर शर्मा का, जिसने अपने वेंचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेजेस के टाइप
मैं नीचे लिख लेता हूँ, आगे लिख लेते हैं। इसमें हमारे 3 तरह के आते हैं, फर्स्ट जेन, मॉडर्न और लास्ट में क्लासिकल। एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट जेन मेरे कौन से होते हैं? वो सारे जो कि इनोवेशन वगैरह पे बिलीव करते हैं, इनोवेशन वगैरह करते हैं। वो जनरली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह को कंबाइन करते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए एक अच्छा सा मार्केटेबल प्रोडक्ट और सर्विस। मॉडर्न वालों का क्या है? मॉडर्न वाले ऐसे वेंचर्स लेते हैं जो करेंट मार्केटिंग नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जबकि क्लासिकल क्या है? क्लासिकल जैसे कि पुराने ज़माने के, जिनका मोटिव ही क्या है? इकोनॉमिक व्यू है कि मैं जितना लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं इकोनॉमिकली वापस ले लूँ। तो ये था एक और टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसके अलावा अदर्स में आता है जो कि काफ़ी सारी बुक्स में दिया हुआ है। इसमें आते हैं इनोवेटिंग। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सारा कंटेंट हो चुका है, बट स्टिल मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। इनोवेटिव वही कोई भी नई अपॉर्चुनिटी वगैरह को देखना एंड उसका कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, वो मेरे इनोवेटिव हो जाते हैं। इमिटेटिव, ये जनरली मेरे वो होते हैं कि जो दूसरे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वगैरह लाए हैं उसको दूसरों को एक्सेप्ट करवाए, कंज्यूमर्स वगैरह को। एंड फैबियन ड्रोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है, इसको स्किप भी कर सकते हो। विमेन वाले मेरे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हो गए। तो ये था ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड बाकी नोट्स वगैरह के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। Dear student, I hope you are really helpful for the YouTube video also and my lecture. Okay, so enjoy with this lecture and take your important notes. Okay, find out your own notes and studied on that. Okay, so thank you, bye bye and take care. I hope you all clear the difference between entrepreneur and manager, because this is the most important topic for exam point of view and your future point of view also. Are you being a manager? Are you being an entrepreneur? And are you being an entrepreneur? Ask these questions to yourself and find out your own answer, and also decide you what you want to do, and then you should be prepare yourself on the basis of that. Here is clear difference: entrepreneur means what, and manager means what. So you should be decide who wants to do for yourself. Okay, so thank you, bye bye, take care, stay home, safe life.